Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I will be covering share market for the upcoming UPSC CSE preliminary examination. So this is a topic under the subject Indian economy. So first of all, we'll read about the types of capital. There are generally two types of capital. There is fixed capital and then also have working capital. So fixed capital basically means कुछ भी बड़ा जो कैपिटल होता है ना, जैसे कि लैंड, प्लांट प्लांट इन द सेंस वही मशीनरी वगैरह, furniture and other such fixed assets are known as the fixed capital, whereas the working capital refers to the money needed for the purchase of raw materials, salaries to employees, rent of the office, advertising and marketing, other day-to-day operations, etc. Now we'll be looking at the capital funding arrangement types. So there are basically three categories in which this is divided. First of all, we have capital funding based upon the period of time period. Then we have on the basis of ownership, or thirdly on source of generation. So based upon the period of time, there are three types of capitals. We have long term capital, short term and medium term capital. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल वही होगा, इक्विटी शेयर्स, रिटर्न अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, जो शेयर्स रहते हैं ना, देन डिबेंचर्स, बॉन्ड डिबेंचर्स, ठीक है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स फ्रॉम बैंक, ऑल ऑफ दीज. देन फॉर शॉर्ट टर्म यू हैव कमर्शियल पेपर्स, प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, फैक्टरिंग, है ना, बैंक्स, ये सब. नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स. So I'm sorry, medium term के लिए there will be public deposits, loans from financial institutions, lease financing, all of these. ठीक है. Next, based upon the ownership, it can be divided into the following categories. So if it is a part of the owner's fund, the capital is part of the owner's fund, then it is referred to as the equity, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे या रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे. ठीक है. And if it is a part of the borrowed funds, then debentures, loans from bank, loans from financial institutions, public deposits, retained earnings and commercial papers. ठीक है. Next है based upon the source of generation. So if it is generating from internal sources or external sources. ठीक है, तो internal sources के लिए वही रहेगा, equity shares, return. It is similar to जो ownership वाला है ना, it is similar to that. तो equity shares, returned earnings, preference capital shares, ये सब. Then external sources के लिए रहेगा financial institutions, loans from banks, public deposits, debenture, lease financing, commercial papers, trade credit, factoring, all of these. ठीक है. Now we'll be looking at securities. So securities are basically financial instruments that entitle the holder to receive a money at a specific time. ठीक है. So there are various types of securities. बस आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी financial instrument wherein the holder will get money after a certain amount of time. ठीक है. So there are primarily two types of securities. We have equity as well as debt, है ना. इक्विटी रहता है और डेट रहता है. सो इक्विटी को इन कैजुअल टर्म्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर्स, एंड डेट के लिए बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वर्ड यूज़ करते हैं, है ना. सो शेयर्स में यू माइट बी नोइंग कि ये कोई भी कंपनी है, इसका अगर कोई शेयर खरीद लेते हैं, दैट मीन्स के you own a part of, you have the part of ownership of that company. ठीक है. एंड उसका as and when the company grows और उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, देन योर शेयर वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है. सो इट represents ownership in a company. The holder will be getting dividends from the profits, and the shareholders are considered to be residual claimants. मतलब they are last to be paid when diluted, when liquidated. जैसे if this company is liquidated, इसको liquidate कर रहे हैं मतलब बंद करके इसका
पैसे are being given back to the places from where it has been taken. In that case, first of all, there is a order of precedence जिसके according the money will be given back, है ना. So in that order of preferences, debt generally comes first as compared to equity. तो जो शेयर होल्डर्स हैं दे विल बी रिसीविंग द मनी लास्ट. ठीक है. सो दे आर ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल क्लेमेंट्स. ठीक है. देन शेयर्स आर क्वाइट अट्रैक्टिव इन बूम पीरियड्स, दैट इज जो इकोनॉमी का बूम बस्ट साइकिल होता है ना, उसमें बूम पीरियड में इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव ड्यू टू द हायर प्रॉफिट पोटेंशियल. हाउएवर इन द डाउनटर्न, इकोनॉमिक डाउनटर्न जब हो रहा होता है, देन people prefer to go for bonds and debentures. ठीक है. Now we look at debt. So debt represents the loan to the company. ठीक है. The holder will be getting a fixed interest rate and principal regardless of the company's profit, and the bond holders are also called as the creditors. So they are the first to be paid in case of liquidation. जैसे ये equity was the last, debt holders will be the first ones to be paid in case of liquidation of a company. ठीक है. Now it is quite attractive in slowdown periods as they offer stable returns as compared to equity or shares. ठीक है. नेक्स्ट है retained earnings के बारे में देख लेते हैं. So when a company makes a profit, it is generally allocated in two ways. So first of all, या तो डिविडेंड दे सकते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकते हैं. डिविडेंड मतलब कि द मनी विच इज़ बीइंग पेड टू द शेयर होल्डर्स. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स रहेगा. वेयर एज रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ री इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस. जैसे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, है ना, द प्रॉफिट में बी यूज्ड. ठीक है. सो दैट इज रेफर्ड टू एज द रिटेन्ड अर्निंग्स. Now, decision कौन लेता है? It is the board of directors of the company which decides that how much will go into the dividends and how much will be retained. Next है financial और securities market and meanings and types of these. ठीक है. So financial market क्या होता है? It is a place where securities are bought and sold. ठीक है. Security क्या था? कोई भी financial instrument which guarantees the holder that you will get money after certain amount of time. ठीक है. तो उसमें दोनों हैं, इक्विटी इज ऑल्सो देयर एंड डेट इज ऑल्सो देयर. वी जस्ट रेड अबाउट दिस. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ. वी हैव बोथ इक्विटी एंड डेट. ठीक है. तो अभी उसका ही देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है. इट इज़ एनी प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस. ठीक है. सो इट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल लोकेशन एंड इट कैन बी डन ऑनलाइन और ऑन अ टेलीफोन एज वेल. ठीक है. तो पुराने ज़माने में इट वॉज डन ओवर टेलीफोन. ठीक है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. सो देर आर वेरियस क्लासिफिकेशंस. सो देर आर वेरियस methods of classification as well. So first of all, if we classify based on the tenure, then there are two types of markets: money market and capital market. Money market में क्या रहेगा? It will be dealing with short term securities, और capital market it will be dealing with long term securities. तो short term मतलब less than 1 year maturity होना चाहिए उनका, and in long term the maturity period will be more than 1 year. ठीक है. इसको लर्न कैसे करेंगे? यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी कि कैपिटल इज जनरली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज़ करते हैं, जो वर्ड है ना कैपिटल. वेयर एज मनी इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस. इन दिस अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल विल बी रेफरिंग टू द मनी, है ना, एंड फिक्स्ड कैपिटल विल बी द मेन कैपिटल, दैट इज लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही है, मनी रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए वी हैव कैपिटल. देन देयर इज another division based upon the freshness of securities. So there are two types of markets based on this. We have the primary market and then we also have the secondary market. तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा? द सिक्योरिटीज़ आर जस्ट इशूड.
ठीक है, तो न्यू सिक्योरिटीज़ है फर्स्ट होल्डर के पास जाएंगी ये। ठीक है, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, वेयर एज इन द केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड। ठीक है, तो ये रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो सब दे आर सेकेंडरी मार्केट्स। वेयर एज जब IPOs आते हैं ना कोई कोई कंपनीज के, दे आर अलॉट इन द न्यूज़ के इनका IPO आ रहा है ना। So if a person subscribes to an IPO and they receive that share, that entire thing will be happening under the primary market. Okay. Next we have based upon the settlement types. So based upon the settlement types, we have two types of markets. We have a spot market and then we also have a futures market. तो spot market में क्या होगा? There is immediate buying and selling of assets, whereas in the case of futures market, buying and selling of assets is done at a future date. ठीक है, तो यही है. This is quite simple. The name itself is self-explanatory. Spot market है, मतलब उसी on the spot immediate buying and selling of assets is being done. Whereas futures market में क्या हो रहा है? Buying and selling of assets is being done at a future date. Next we have based upon the asset type. So we on based upon the asset type we have the following kinds. So you have bond market, जिसको debt market भी बोलते हैं. Then you have the share market, है ना, जो equity market रहेगा, है ना. फिर रहेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी एक मार्केट रहेगा. देन फॉरेन करेंसी के लिए मार्केट रहेगा, कमोडिटीज़ के लिए मार्केट रहेगा. ठीक है, so all of these have their different markets. So based upon the assets there are different markets as well. Then यूनिवर्सल एक्सचेंज क्या रहेगा? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स आर ट्रेडेड एट वन प्लेस. ठीक है, सो the SEBI had allowed, SEBI refers to the Securities and Exchanges Board of India. It had allowed BSE and NSE to launch such exchanges in 2018. ठीक है, सो नाउ दे कैन ऑल्सो मेक यूनिवर्सल एक्सचेंजेस जहाँ पे ये सारे एसेट्स है ना, सारे टाइप्स के एसेट्स, ऑल ऑफ देम कैन बी ट्रेडेड इन वन प्लेस इटसेल्फ. ठीक है, नाउ वील बी लुकिंग एट डेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो देखो, बॉन्ड होल्डर्स आर जनरली क्रेडिटर्स टू अ कंपनी. ठीक है, सो फर्स्ट क्लेम, दे हैव द फर्स्ट क्लेम टुवर्ड्स लिक्विडेशन एज यू माइट बी नोइंग, है ना. दे हैव फर्स्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था. सो दे हैव assured interest irrespective of the profit of a company. These debt instruments can be further classified into short term versus long term. So we'll be looking at that के short term debt instruments क्या होते हैं और long term debt instruments क्या होते हैं. So first of all we are beginning with short term debt instruments. So financial instruments, देखो शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनका टेन्योर क्या रहेगा? इट विल बी लेस दैन 1 year, है ना. एंड देन दे विल बी अनसिक्योर्ड. That means they will not be backed by an asset. That means no collateral will be required in this case. Short term है, थोड़े से दिन के लिए दे रहे हैं. Then the देखो amount will be less, time period is already less. That is why no collateral is also required. ठीक है. Then pricing क्या रहेगा? They are generally sold at a discount and then repurchased at a face value. क्या रहेगा? ये अगर कुछ भी मेरे पास शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, इसका फेस वैल्यू सपोज ₹10 है. तो अगर मेरे को आई वॉन्ट अ लोन, नहीं आई वॉन्ट अ लोन, तो मेरे पास ये डेट इंस्ट्रूमेंट पड़ा है. ठीक है, कोई आया जो मेरे को लोन देने आया है, ये आया एंड ही वॉन्ट्स टू गिव मी अ लोन. सो व्हाट विल ही डू? ही विल बाय दिस एट द प्राइस ऑफ, मेरे को कितना लोन चाहिए? मेरे को ₹5 का लोन चाहिए, है ना. तो चलो ₹8 ले लो. ठीक है, ₹8 का मेरे को लोन चाहिए. तो व्हाट विल दिस पर्सन डू? दिस पर्सन विल गिव मी ₹8. इसने मेरे को ₹8 दिया. ठीक है, एंड व्हाट विल ही गेट बैक इन रिटर्न? ही विल गेट दिस बॉन्ड डॉक्यूमेंट इन रिटर्न. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ द बॉन्ड इज ओवर, व्हाट विल हैपन इज दैट जो मैं हूँ ना, आई विल अगेन बाय दिस बॉन्ड बैक एट द फेस वैल्यू.
तो मतलब मैं क्या करूँगी, इसको मैं 10 रुपये दूंगी, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये, और उसको 10 रुपये मिल गया एंड ही हैज़ गिवन मी द ये जो बॉन्ड का जो डॉक्यूमेंट था उसने मेरे को वापस दे दिया है। ठीक है, तो हुआ क्या, इफेक्टिवली दिस हैज़ बीन अ काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट रेट, बिकॉज 8 रुपये आई हैड टेकन इनिशियली एंड आई एम रिटर्निंग हाउ मच, 10 रुपीज़। सो 2 रुपीज़ कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, एंड द रेस्ट 8 रुपीज़ विल बी द प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये ऐसे करते हैं कि इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रीपर्चेज एट द फेस वैल्यू, सो द डिफरेंस इज द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रोसेस को is also known as the rediscounting of the bills. So this is quite important. The term rediscounting of the bills means ये वाला process. ठीक है, then nature क्या होता है, these are generally negotiable and transferable, so the lender can sell it to a third party who can then claim the money from the borrower. ठीक है, तो अगर जैसे इसको तो ठीक है, इसको अभी जल्दी वापस चाहिए पैसे, देन दिस पर्सन कैन फर्दर सेल दिस मनी दिस बॉन्ड टू समवन एल्स। ठीक है, इसको खरीद लिया, देन ही विल बी द वन हु फ्रॉम होम आई विल बी परचेजिंग इट बैक। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सो इट इज़ क्वाइट नेगोशिएबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर मनी, बिकॉज these are very highly liquid assets, है ना, they can be quickly converted into cash. So this is highly liquid because अगर इसको हम शेयर्स से कंपेयर करेंगे या जैसे लैंड से कंपेयर करेंगे, तो लैंड को बेचने में देर विल इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, first you will have to look for buyers, then whether we meet the requirements of that buyer or not, so it is not as liquid as are these short term debt instruments. ठीक है, these are very highly liquid assets. ठीक है, and that is why they are known as near money, मतलब पास में ही पैसा पड़ा है, मतलब बॉन्ड के काफ़ी पास में ही पड़ा है, बॉन्ड से इट कैन क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ठीक है, पास में ही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस वी हैव रेड अबाउट शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्या दिया है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल्स दिए हैं। सो जो गवर्नमेंट इशू करते हैं उन सारे शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जो 1 ईयर से कम के टेन्योर वाले हैं, उसमें ट्रेजरी बिल्स कम फर्स्ट। तो ट्रेजरी बिल्स कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, दे कैन बी ऑफ 14 डेज मैच्योरिटी पीरियड, देन 91 डेज का मैच्योरिटी पीरियड का हो सकता है, देन 182 डेज या 364 डेज। ठीक है, देन अगेन शॉर्ट टर्म में वी कैन हैव कैश मैनेजमेंट बिल्स ऑफ 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड। फिर होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये WMA स्टैंड्स फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय RBI। Then we also have government securities, but they are generally used for long term borrowing. ठीक है, और एक रहता है जो स्टेट बोरो करते हैं ना RBI से, उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ठीक है, सो नाउ वील बी लर्निंग ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्ली। तो देखो, ट्रेजरी बिल का क्या क्या दिया है, 1491, 182 एंड 364। ये देखो 14 इंटू कितना, इंटू 6 से 84 आता है, तो 84 से 7 ज़्यादा 91, या तो आप 13 इंटू 7 से भी 91 कर सकते हैं। ठीक है, देन 91 इंटू 2 से कितना आएगा, 182, एंड 182 इंटू 2 विल गिव अस 364। ठीक है, सो दैट इज जस्ट अ स्मॉल लिंक which I have tried to make it so that this becomes easier to remember. Once you become familiar with the numbers ना, then it will be easier to recall. ठीक है, तो 14 डेज का होता है, देन 91, देन 182 एंड 364। सो दिस इज 1 डे लेसर देन एन ईयर। ठीक है, सो ट्रेजरी बिल्स आर फॉर टाइम पीरियड लेसर देन एन ईयर। ठीक है,
देन इसके अलावा क्या लर्न करने का ज़रूरत है, हाँ, कैश मैनेजमेंट बिल। सो कैश मैनेजमेंट बिल कितना रहेगा, 91। सो इसको लर्न कैसे करेंगे, कैश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को आप 9 से कैसे कर सकते हो, कि क्या आपने मैनेजमेंट डिग्री करा है, तो 9 नहीं करा है, नो, सो 9, ठीक है, वैसे करके लर्न, कुछ भी बना के यू कैन लर्न दिस, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट बिल 91, then special drawing facility by RBI, that is also present. Now let me tell you, if the government wants, union government wants to borrow from RBI, तो वो उसको वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो डब्ल्यू में लिखा है ना, और ओवरड्राफ्ट बाय आरबीआई। सेकेंडली, if the state wants to borrow from RBI, it will be known as special drawing facility, SDF, ठीक है। सो एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करना है तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं उनको, फॉर लॉन्गर दैन एन ईयर और सो, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस, SDF एंड SDL, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर गवर्नमेंट, WMA, ओवरड्राफ्ट एंड SDF। सो जो ओवरड्राफ्ट होता है, दैट इज़ रेपो रेट प्लस 2 to 5%, उसका जो लोन रेट रहता है ना, दैट इज़ अराउंड रेपो रेट प्लस 2 to 5%। देन जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस का रेट इज़ इक्विवेलेंट टू रेपो रेट, ठीक है। एंड जो SDF है, स्टेट स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, उसका रहता है रेपो रेट -1, ठीक है। नाउ डू नॉट, इसको ना यू माइट गेट कंफ्यूज्ड विद जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता था, और एक और होता था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। डू नॉट कंफ्यूज दिस विद स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ठीक है। दीज बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज फॉर द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अ लोन फ्रॉम RBI, वेयर एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या था, वो कोलैटरल फ्री लोन्स के लिए है ना। तो उसमें दिस वाज सिमिलर टू रेपो रेट, मतलब जैसे रेपो रेट में banks used to park their money in RBI, similarly this is also the same. Herein the banks will be parking their money in RBI, but RBI will not be giving any government securities as collateral, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में इट इज़ सिमिलर टू रेपो रेट। ये हमने देखा था ना कि सिमिलर इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर, ठीक है। ये रेपो के सिमिलर था और ये था रिवर्स रेपो के। जस्ट द डिफरेंस वाज दैट देयर वाज नो कोलैटरल इन बोथ द केसेस, ठीक है। वन थिंग विच यू नीड टू, हाँ वही आपको क्या याद रखना है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी इज़ डिफरेंट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आप कैसे लर्न करोगे, स्टैंडिंग, दोनों में स्टैंडिंग है, वेराज इसमें नहीं है, इसमें स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, ठीक है। तो स्टैंडिंग से आप वैसे लिंक कर लो कि खड़े होके लोन पैसे दे रहे हैं बैंक्स, है ना, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं स्टैंडिंग। जस्ट इमेजिन दिस सीन के RBI है यहाँ पे, और फिर बैंक वाले आके खड़े हुए यहाँ पे, बैंक वाले, एंड दे आर गिविंग मनी और टेकिंग मनी फ्रॉम RBI, ठीक है। खड़े होके ले रहे हैं, तो इफ़ दे आर गिविंग मनी देन दैट विल बी नोन एज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एंड इफ दे आर टेकिंग मनी देन इट विल कम इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन बोथ द केसेस कोलैटरल नहीं रहेगा, ठीक है। तो खड़े होके लोन ले रहे हैं, स्टैंडिंग एंड लोन ले रहे हैं, या जो भी ट्रांजैक्टिंग, ठीक है। नाउ जो यहाँ का जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, इट इज़ 1% लोअर दैन द रेपो रेट, ठीक है। इसको वैसे ही देख लेते हैं एक बार पहले। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में है,
The state takes it when its special drawing facility and ways and means advances quota is over. Okay, so this is considered to be the last resort, overdraft facility. Now, यूनियन के लिए क्या है, यूनियन टेक्स इट व्हेन द WMA कोटा इज ओवर. ठीक है, और फिर WMA का देख लेते हैं. अच्छा, देयर कोटा इज गिवन हियर. सो फॉर स्टेट्स the total combined quota is around 60,000 crores. Now for union, the total quota is 1.2 lakh crores. So this is double of the quota for states. ठीक है, double of the quota for states. Okay, now we'll go to the standing deposit facility. So it depends on how much securities the state can pledge to RBI. So इसमें there is no such limit. स्टैंडिंग नहीं, ये वो है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी. इसमें जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या अदर सिक्योरिटीज़ विच द स्टेट्स हैव, जितने भी वो दे सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंगली दे विल बी गेटिंग द मनी. ठीक है, सो अभी यू नीड टू रिमेंबर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या रिमेंबर करना है, द फॉर्मूलाज. ठीक है, सो द वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ borrowing which the states as well as the union follows when it has to borrow from RBI. ठीक है, and the interest rate in this case would be equal to the repo rate. ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या करते हैं वो लोग, दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकंड प्रेफरेंस रहेगा SDF. SDF stands for special drawing facility and special drawing facility is not applicable for the union. तो इसको कैसे लर्न करेंगे कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द यूनियन. ऐसे कर लो कि ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से कंफ्यूज ना हो जाए, दैट इज़ वाई यूनियन में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, देन इसका कितना रहेगा, इट विल बी रेपो रेट -1% विल बी द इंटरेस्ट रेट. सो वाई इज़ इट सो, वाई इज़ इट लोअर दैन रेपो रेट, बिकॉज यहाँ पे दे आर प्लेजिंग सिक्योरिटीज़ एज वेल. ठीक है, सो ऐसे करके लर्न कर लो कि सिंस दे आर प्लेजिंग देयर सिक्योरिटीज़, दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, नेक्स्ट है द थर्ड वन, द लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है, सो इसमें क्या है, द इंटरेस्ट रेट वुड बी रेपो रेट प्लस समथिंग, so 2 to 5%. So this is more than that in ways and means advances. The main reason is that यहाँ तक किसी स्टेट को पहुँचना ही नहीं चाहिए. दिस इज़ अ वेरी डायर सिचुएशन दैट दे आर इन. ठीक है, तो उस केस में वही उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि डो नॉट बोरो सो मच फ्रॉम द RBI, दैट इज़ वाई द लोन रेट इज़ वेरी हाई. ठीक है, एंड क्या दिया है, स्टेट्स विल टेक इट ओनली व्हेन दे आर exhausted their quota under STF and WMA. ठीक है, and union takes it when the WMA quota is over. So you just need to remember these facts. First of all the interest rates, then the loan quota. लोन कोटा यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 1.2 लाख, द डबल ऑफ 60,000 करोड़. ठीक है, ये जो 60,000 करोड़ है दैट इज़ द टोटल कंबाइंड कोटा फॉर ऑल द स्टेट्स. ठीक है, डू रिमेंबर दैट. सो इतना ही है इसमें. नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय गवर्नमेंट में वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में वील स्टडी प्रॉपरली. सो नाउ वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर short term borrowing facilities for the government to manage temporary cash flow mismatches. ठीक है, so the tenure is nearly up to 3 months. अच्छा, do remember this is an important fact again. 3 months का tenure है and the WMA is not included in the fiscal deficit calculation. Again, this is extremely important fact. ठीक है, और COVID-19 का this is not an important fact. You just read this one. I will just read this once. Due to increased cash flow mismatches, RBI raised WMA limits in 2020 under the Atmanirbhar Bharat initiative. तो ये काम का नहीं है अभी. And
वही 2024 में भी the RBI had raised its limits in order to support the government. So these two are not important from the exam point of view. You just need to know first of all that the tenure for WMAs, ways and means advances, is around 3 months. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? WMA इसका जो W एंड M है, दे लुक लाइक इन्वर्टेड थ्रीज, है ना, थ्री ऐसा दिखता है, उसी को इफ यू इन्वर्ट इट स्लाइटली इट विल बिकम लाइक W, एंड इफ यू फर्दर इन्वर्ट इट देन इट विल बिकम लाइक M. ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि 3 months के लिए है. Next thing which you need to remember is that it is not included in the fiscal deficit calculations. Again, this is an extremely important fact. ठीक है, तो fiscal deficit calculations में it is not included. So very important thing. And why is it not included? Because it is a very short term borrowing facility and it is used for managing only temporary cash flows. And moreover, RBI is considered to be a organ of the government only. So ऐसे consider करते हैं कि fiscal deficit में this will not be included. ठीक है. Next we'll move to special drawing facilities. So RBI's special drawing facility gives short-term loans to states, governments, or union territories against unions, government securities, or treasury bills as collateral. So since there is a collateral in this case, that is why the interest rate is also lower, as I told you before. ठीक है, तो ये सेम चीज़ ही है, nothing new to learn here. Then हाँ, ये वो दिया है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, डू नॉट कंफ्यूज दिस विद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, है ना. जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी या स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, डू नॉट कंफ्यूज दैट विद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. सो दिस हैज़ बीन टोल्ड इन अ टेबल हियर. सो special drawing facility is primarily for states, है ना, and short term borrowing by the states. So whereas standing deposit facility क्या था, वही कि the banks will be depositing their money in the RBI and there will be no collateral involved in this case. ठीक है. देन क्या दिया है, जो IMF है, IMF का, हाँ, डू नॉट कंफ्यूज दिस वर्ड ऑल्सो. IMF का भी देर इज़ अ टर्म नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स. ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द लोन्स टू नेशंस हु आर फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ठीक है, सो डू नॉट कंफ्यूज दीज थ्री टर्म्स, ऑल थ्री आर डिफरेंट. जो स्टेट्स के लिए लोन है दैट इज स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी. देन वी हैव स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वेर इन bankers deposit money to the RBI without collateral. And then the third one is IMF ka, there's a facility provision known as special drawing rights. ठीक है, so this involves loans to nations who are facing balance of payment crisis. Next देख लेते हैं certificate of deposits which are an instrument by bankers. So certificate of deposit का first of all we will be looking at the definition. So it is an unsecured short-term negotiable debt instrument issued by commercial banks in the money market. So again this is unsecured as well as short term. ठीक है. Next surge bank 2023 surge देख लेते हैं. So banks had issued a high number of certificates of deposits due to very low number of deposits and costly repo loans. ठीक है, there was a very insufficient inflow of deposits and that is why a lot of certificates of deposits had been issued by the commercial banks. ठीक है. So that this was a way to raise funds by the banks. ठीक है, तो मनी मार्केट से दे had मनी मार्केट मतलब कि शॉर्ट टर्म मार्केट. So this was one method for gaining funds from the money market. ठीक है.
तो इसमें वही दिया है कि 2023 में क्या हुआ। सी बैंक्स हैव सर्टन वेज वेयर इन दे कैन गेट मनी फ्रॉम। एक तो है कस्टमर्स से, सो कस्टमर्स का द इनफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स हैड रिड्यूस्ड, ठीक है, इट हैड रिड्यूस्ड ग्रेटली, दैट इज वाई दे कुडंट, मतलब उनके पास दे वर फेसिंग अ कैश क्रंच, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो गेट मनी फ्रॉम आरबीआई, है ना, रेपो रेट के अंडर या इवन अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। बट द रेपो रेट हैड इंक्रीज्ड वेरी मच, सो दैट वाज आल्सो नॉट एन ऑप्शन विच दे हैड, ठीक है। तो थर्ड चीज़ उन्होंने क्या करा, दे इशूड अ हाई नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशू करेंगे तो इन रिटर्न फॉर दैट दे विल बी गेटिंग मनी, है ना। तो whoever buys this they will be providing them money, ठीक है। बॉन्ड जैसा ही है, छोटा सा, है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लोन, so that is why a lot of these were issued back then. Now की टर्म्स देख लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सो a negotiable instrument is a signed document which promises payment at a specified time, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अनसिक्योर्ड, दैट इज नो कोलैटरल और असेट बैंकिंग जो होता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि अ डॉक्यूमेंट विच प्रोमिसेस पेमेंट एट अ स्पेसिफाइड टाइम, वो हमें पता ही है, वी हैव रेड अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो। अनसिक्योर्ड वही कोलैटरल नहीं रहेगा उसमें, और शॉर्ट टर्म क्या रहेगा, व्हेन द मैच्योरिटी पीरियड इज लेस दैन 1 ईयर, ठीक है। सो यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग दिस, ठीक है। इसमें बस ये आप याद रखना कि नेगोशिएबल अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि they will be paying only at a specified time. This is a bit ironical. Negotiable का वैसे literal meaning क्या होता है, that it can be negotiated, मतलब कि थोड़ा बात करके change कर सकते हैं, है ना। So it is ironical because इसमें क्या दिया है कि negotiable instruments are the ones जिनका there is a very specified time period wherein it has to be paid, ठीक है। So इसलिए it is ironical. बाकी देख लेते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के और मोर टाइप्स ऑफ दोज। सो फॉर कंपनीज, व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, then they can issue bills of exchange, hundi, commercial papers and promissory notes. So we had read about these two in an earlier video. Now they can also issue bills of exchange and hundi, ठीक है। then अगर कोई merchant है, borrower, सो दैट पर्सन कैन इशू ए कमर्शियल बिल दे सकते हैं वो, ठीक है। देन कॉल मनी, नोटिस मनी का भी ऑप्शन है। एंड देन देयर इज ऑल्सो CBLO, दैट इज कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट कॉल मनी एंड पुट मनी। कॉल मनी जैसा नाम ही है उसका ना, इट इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. It is the interest rate when financial intermediaries like banks or NBFCs they borrow for 1 day amongst themselves. So, for example, State Bank of India borrows some money from HDFC, then that and that too only for a day, then that will be known as call money. ठीक है, SBI borrowing from HDFC. ठीक है. Now the second one is notice money. So it is the same as above. However, in this case they will be borrowing for nearly 2 to 14 days. ठीक है, अगर एक दिन का है then it will be known as call money. And if it is call मतलब इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, कॉल एकदम से कर देते हैं ना. सो इंस्टेंटली चीज़ अगर चाहिए हमें कभी इंस्टेंटली ओनली फॉर अ डे, then you will call them and ask them for money. ठीक है, लर्न करने के लिए मैंने बताया है. देन वी हैव नोटिस मनी. सो नोटिस कितने दिन का देते हैं, एटलीस्ट 2 to 14 days का, ठीक है. सो रिमेंबर दिस प्रॉपरली. और इसके अलावा वी लुक एट CBLO एज वेल. देखो मर्चेंट का ये भी लर्न कर लेते हैं. मर्चेंट ट्रेडर से आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, लिंक कर सकते हो. एंड ट्रेडर और मर्चेंट्स क्या करते हैं, बिल बनाते रहते हैं, ठीक है. तो उससे आप लर्न कर लो कि they give commercial bills when they want a loan.
ठीक है। Next, we'll be looking at CBLO, collateralized borrowing and lending operations. So, Clearing Corporation of India Limited helps financial intermediaries to get short-term loans through this instrument. ठीक है. So, CCIL is the one who provides loans, मतलब helps the financial intermediaries like bank or other NBFCs to get short-term loans via this. So, do remember this properly. कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस कौन हेल्प करता है? CCIL. ठीक है, तो CCIL का फुल फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं. यहाँ लिखा है, वील ट्राई टू लर्न दिस प्रॉपरली. क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अब क्लियरिंग को, किसी चीज़ को क्लियर करना है हमें, है ना. क्लियर करना इज एन ऑब्लिगेशन. या आप ऐसे लर्न कर लो कि क्लियरिंग इज कैन बी इक्वेटेड टू साफ सफाई करना. ये दिस इज जस्ट अ लर्निंग ट्रिक विच आई एम गिविंग यू. साफ सफाई करने का सबका ऑब्लिगेशन होता है ना. तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं कि क्लियरिंग करने का एवरी वन हैज़ एन ऑब्लिगेशन. सो CCIL प्रोवाइड्स कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस, उसमें हेल्प करता है FIs को. ठीक है. Next we'll move on to ICD. So ICD stands for intercorporate deposits. ठीक है. So intercorporate deposits are basically unsecured short-term loans made by a company with another company. ठीक है. तो the name is self-explanatory here. Intercorporate मतलब दो corporates के बीच में जो deposits हो रहे हैं. ठीक है. So these are unsecured short-term loans made by a company with another company. Then we have repo rate. So repo ये पता ही है, we have read this properly in the video on monetary policy. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राई पार्टी रेपो रेट के बारे में. सो in this case a tri-party agent, it can either be the NSE, that is the National Stock Exchange, or the Bombay Stock Exchange. Now that will be acting as an intermediary between two parties to facilitate collateral custody and repayment. ठीक है. और उनको एक कमीशन मिलेगा इससे. एंड इट इज़ नॉट अ टूल ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. तो इसमें आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. क्या होगा, दो लोग हैं, इसको चाहिए पैसे दो. वैसे तो कंपनीज के लेवल पे होता है, बट आई जस्ट टेल यू दिस. ये है इंटरमीडियरी और ये पर्सन है एक और. सो लेट दिस बी द बोरोअर, है ना, एंड दिस पर्सन इज द लेंडर. ठीक है. तो क्या होगा, ये जो बीच में इंटरमीडियरी है, दिस इज नोन एज द ट्राई पार्टी एजेंट. वेट, ट्राई पार्टी एजेंट. ठीक है. जो ट्राई पार्टी एजेंट रहेगा बीच में, उसका काम क्या है? कुछ नहीं, ही विल जस्ट फैसिलिटेट दिस इंटायर ट्रांजैक्शन. तो वो क्या करेंगे, ये जो लेंडर ने पैसा दिया है, ही विल प्रोवाइड दैट टू द बोरोअर. ठीक है. उसके बाद में दिस बोरोअर विल बी गिविंग सम कोलैटरल, है ना, कोलैटरल जाएगा ना. दैट कोलैटरल विल बी केप्ट विद द ट्राई पार्टी एजेंट. सो अच्छे से इट विल बी केप्ट, और वही कस्टडी ऑफ द कोलैटरल विल बी विद द ट्राई पार्टी एजेंट. ठीक है. एंड दिस ट्राई पार्टी एजेंट विल इंश्योर दैट द इंटायर ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग स्मूथली. और उसके बाद में वो ये भी इंश्योर करेगा कि द लोन इज पेड बैक टू द लेंडर, है ना, एंड द इंटायर थिंग हैपन्स प्रॉपरली. ठीक है. बस ये काम है. एंड इन रिटर्न फॉर ऑल ऑफ दिस ही विल बी गेटिंग a commission. ठीक है. So the tri-party agent is generally the National Stock Exchange or the Bombay Stock Exchange in this case. ठीक है. And do not confuse the term repo with
कि ये आरबीआई से कुछ लिंक्ड होगा, नहीं, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ट्राई पार्टी रेपो इज नॉट रिलेटेड टू द आरबीआईज मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में वही नंबर ऑफ पार्टीज दिया है इसमें। नेक्स्ट विल सी फैक्टरिंग एंड ट्रेड्स। सो इसको देख लेते हैं। सपोज एन एमएसएमई सेलर हैज सोल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर जियो फोन्स टू मुकेश अंबानी, but Mukesh Ambani says that he will pay the bill next month. So presently there is an unpaid invoice, है ना? So the MSME seller can pledge this invoice to a factor, that is the bank, to avail loans. तो we have read about this in a previous video as well. इसमें क्या होगा, I'll just explain to you अच्छे से। तो जैसे दिस इज़ अ शॉपकीपर, इससे किसी ने भी आके कुछ भी लिया है, सपोज जैसे क्लॉथ क्लॉथ लिया है इसने, 2 मीटर क्लॉथ लिया है किसी ने, ये आया है पर्सन, इसने 2 मीटर क्लॉथ लिया इससे, और उसकी जगह पे पैसे नहीं दे, बट ही इंस्टेड गिव हिम अ इनवॉइस कि आई विल बी पेइंग यू बैक दिस अमाउंट ऑफ मनी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो अनपेड इनवॉइस बोलते हैं इसको। उसने ये शॉपकीपर को एक अनपेड इनवॉइस दे दिया। ठीक है, सो अभी क्या करा, शॉपकीपर वांट्स मनी, है ना, उनको ऐसा है कि अभी मेरे को चाहिए, ज़रूरत है पैसे, आई कैन नॉट वेट अप टिल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो व्हाट ही कैन डू इज ही कैन टेक दिस अनपेड इनवॉइस एंड ही कैन अवेल अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑन बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, सो ही टेक दिस, गो टू द बैंक, आस्क फॉर अ लोन, एंड दिस अनपेड इनवॉइस विल एक्ट एज द कोलैटरल हियर। समझ गए? तो इनको यहाँ पे पैसा मिल गया and this will act as a collateral। ठीक है, बस दिस इज ऑल दैट हैपेंस हियर। नेक्स्ट बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट वील सी फैक्टरिंग रेगुलेशन और अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो दिस एक्ट वाज brought, असली में द इनिशियल एक्ट वाज इन 2011, है ना, उसको अमेंडमेंट करके 2021 में भी लाए थे। ठीक है, एंड इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द लोन अवेलेबिलिटी फॉर एमएसएमईज। ठीक है, तो इसको हम लोग को वील हैव टू लर्न दी ईयर्स। सो फैक्टरिंग, फैक्टरिंग का जो एफ है उसमें वर्टिकल लाइन है। सिमिलरली 2011 का भी देयर इज अ वर्टिकल लाइन, एंड इवन 2021 also has a vertical line। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वील सी बिफोर एंड आफ्टर। सो earlier when we had the factoring regulation act of 2011, only banks and factoring companies could provide loans। ठीक है, and only now क्या हो गया, all the NBFCs can now provide loans after RBI registration। ठीक है, then earlier only 7 NBFCs were registered as factoring companies. Now over 9,000 NBFCs can now participate, thus increasing the loan availability। So essentially the first 2 points are the same thing only। क्या दिया है कि पहले only certain companies could provide the loans, but अभी all the NBFCs can provide the loans। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई हैड लिमिटेड रेगुलेटरी पावर्स अर्लियर, बट अभी इट हैज स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द फैक्टरिंग बिजनेस। ठीक है, नाउ वील द नेक्स्ट पॉइंट इज एमएसएमईज कुड कमिट डुअल फाइनेंसिंग फ्रॉड बाय प्लेजिंग द सेम इनवॉइस टू मल्टीपल लेंडर्स। बट अभी क्या हो रहा है, ऑल द फैक्टरिंग लोन ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रजिस्टर्ड इन अ सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, दस प्रिवेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो यही डिफरेंस हो गया कि डुअल फाइनेंसिंग फ्रॉड it has been overcome। No more such frauds happen because a central registry is being kept। ठीक है, नेक्स्ट है
Lack of legal clarity on trades. Trades stands for trade receivables discounting system operations. Now there is more legal clarity on trade receivables discounting system operations. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट फैक्टरिंग प्लेयर्स. तो ट्रेड रिसीवेबल वही होता है, इज सिमिलर टू एन अनपेड इनवॉइस वेर इन उसमें बस एक अग्रीमेंट होता है कि आई बी पेइंग यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, उसी को ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे. सो ट्रेड्स का एक प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट factoring players. So, Trades is an online platform that connects MSME borrowers with banks or NBFCs. ठीक है, for invoice financing, similar to how OLX and Quicker connects buyer and sellers. तो बस इतना ही है. It is registered with RBI for secure operations. ठीक है, और there are various types of trades platforms. Examples क्या क्या है? M1 Exchange, RXIL, then A Trades, ये सब. ठीक है, the most famous one is RXIL since it is owned by SIDBI, NSE, SBI, ICICI and Yes Bank. So it collaborated effort है ये शायद, है ना. बस इसमें you just need to remember that it is an online platform that connects MSME borrowers to factoring agencies like banks and NBFCs, and it is registered with the RBI as well for ensuring secure operations. ठीक है, next we'll be looking at LIBOR and MIBOR, that is the interest rate benchmarks. ठीक है, तो LIBOR stands for London Interbank Offered Rate. ठीक है, it is basically the average interest rate at which banks in London give short term loan to each other. ठीक है, each other को जितने लोन पे देते हैं एवरेज इंटरेस्ट रेट उसका, दैट इज नोन एज द लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. सो दिस नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देखो, लंदन में जो इंटरबैंक ऑफर करते हैं रेट, इंटरेस्ट रेट, दैट इज नोन एज लिबोर. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है, नाउ वी लुक एट मेबोर. सो अगर हम लिबोर में मुंबई डाल देते हैं लंदन की जगह, देन इट कम्स मेबोर. सो और अगर ग्लोबल जीबोर भी होता है, ठीक है, सो वो हो जाएगा मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. ठीक है, देन है MIFOR, दैट इज मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पुराना चीज़ होता था. एंड दीज आर मृणाल सर्स नोट्स, उनका ही थोड़ा समरी है दिया है ये. सो उन्होंने भी अपने हैंड आउट से हटा दिया है, सो वी वोंट बी रीडिंग दिस आइदर. ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स. तो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द टेन्योर विल बी मोर देन 1 year. ठीक है, एंड फर्दर सब डिविजन कैन बी डन बेस्ड अपॉन हु इज़ द बोरोअर. ठीक है, सो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख लेते हैं कॉलोनियल एरा गवर्नमेंट के टाइम पे जो थे, है ना. एंड डू नॉट लुक एट दिस नंबरिंग, देयर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर हियर, सो आई विल जस्ट amend this. So first of all we have coupon bonds. तो coupon bonds क्या है? These have detachable coupons which are used to claim interests. ठीक है, and the bond interest rate is called as the coupon rate in this case. So this is fairly simple. Coupon bonds में there will be a detachable coupon and the bond interest rate is called the coupon rate. Then we have the zero coupon bonds. So they are sold at a discount and redeemed at face value. So there is no periodic interest involved in this case. ठीक है, क्या रहेगा? ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स विल बी सोल्ड एट डिस्काउंट एंड redeemed at face value, and that is why they are called zero coupon bonds, because coupon rate is essentially zero, है ना. वो बस जो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं और
फेस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, दैट इज़ द ओनली इंटरेस्ट रेट विच इज़ इन्वॉल्व हियर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बियरर बॉन्ड्स एज वेल। सो दे आर नॉट लिंक्ड टू एनी पर्सनल आईडी। ठीक है, एनी वन होल्डिंग द बॉन्ड कैन क्लेम द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सो इट इज़ यूजली इशूड ड्यूरिंग वॉर टाइम। ठीक है। सो जैसे अगर आपने देखा होगा व्हेन द चेक्स आर इशूड, चेक के साइड में यहाँ पे जनरली पीपल क्रॉस द चेक, है ना। व्हाई इज इट क्रॉस्ड? इन ऑर्डर टू स्टेट दैट दिस चेक शुड ओनली बी गिवन टू द अकाउंट पेई ओनली। सो जिसका नाम लिखा है अकाउंट पेई, ओनली दैट पर्सन कैन इनकैश इट, अदरवाइज इट विल बिकम अ बियरर बॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन से लिंक नहीं रहेगा, एनी वन हु इज होल्डिंग द चेक विल बी एबल टू इनकैश इट। ठीक है। So a similar thing happens in bearer bonds. Anyone holding the bond can claim interest and principal. Next, we will be looking at modern day bonds. ठीक है। So government securities, sovereign bonds, everything else. So examples क्या हैं? We have government securities, dated securities, sovereign bonds, किसान विकास पत्र। ठीक है, all of these are examples of the same. Then we also have gilt-edged securities. Gilt-edged securities में क्या रहेगा? They are high safety bonds backed by the government but with lower interest rates due to minimal risks. So gilt-edged, कहीं पे भी gilt-edged का वैसे I'll just tell you the literal meaning first. तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने की बुक्स में ये जो एज जो बहुत ही पॉश टाइप बुक्स होती है ना, वहाँ पे द एजेस ऑफ द बुक विल हैव स्लाइटली गोल्डन मेटालिक सा कुछ रहेगा, है ना। दैट इज नोन एज गिल्ट एज्ड। ठीक है। एंड ऑल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर यूज आर नोन एज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बिकॉज वो ऐसे गोल्ड, देखो, गवर्नमेंट इज द सोवरेन बॉडी इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। एंड सो दे हैव अ लॉट ऑफ, दे होल्ड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। सो दैट इज़ वाई उनको गोल्ड से कंपेयर करते हैं कि गिल्ट एज्ड है इनकी सिक्योरिटीज, तो बिल्कुल ठीक है। एंड सो यहाँ पे भी वही दिया, दीज आर वेरी हाई सेफ्टी बॉन्ड्स, है ना। एंड however they will be having lower interest rates due to minimal risk. So government securities have very minimal risk because ऐसा नहीं है कि government will default on it. There are very low chances that a government will default on it. ठीक है। So that is why these are known as gilt-edged securities. Next we have credit ratings. So credit ratings we have already learned in a previous video as well. So basically जो global rating agencies हैं, they will rate our credit history, India's credit history, and based upon that, and not only the credit history, it will also include the overall economical situation of our country, है ना। Based upon a number of parameters, they come up with a rating. So the rating basically signifies कि कितना chances है कि the government will be गिविंग बैक योर लोन। ठीक है। सो द ग्लोबल एजेंसीज रेट सोवरेन बॉन्ड्स। जैसे क्या क्या रेटिंग देते हैं? ए रेटिंग, देन BAA रेटिंग, ऑल ऑफ दीज, एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिस्क इन्वॉल्व कि हाउ पॉसिबल इज इट दैट दे रिटर्न और मे नॉट रिटर्न द loaned amount. ठीक है। So India currently has a BAA rating, whereas the US Treasury bonds have the highest rating, that is AAA. ठीक है। Next we look at top rating agencies. So the best examples of these are Fitch, Moody's, Standard and Poor's, etc. ठीक है। They are often criticized for favoring US or EU bonds over India, China and Russia. Next, we look at global bond indices and inclusion of Indian government securities. So, as you might be knowing, a bond market index is a measurement tool to show the performance of the bond market. ठीक है। तो बस इतना आप याद रखना कि बॉन्ड मार्केट इंडेक्स क्या है। इट इज़ primarily aimed at showing the performance of that bond market. Next, we'll look at these, जैसे JP Morgan का GBI EM है,
उसका फुल फॉर्म रहेगा जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है, GBIEM। इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ मोर देन 15 एमर्जिंग कंट्रीज के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। So and even Indian government security is included in this since 2024. Now we also have Bloomberg का EM index. Again it stands for Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Index. ठीक है, and even India has been included in it from 2025. So वही है index, it will be tracking the prices of um, government securities of different countries, ठीक है। और इसमें और नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट, डू रिमेंबर द नेम्स दो। एक तो है जेपी मॉर्गन का, एक है ब्लूमबर्ग। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जेपी मॉर्गन का हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन। सो वी हैव बीन इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम 2024। तो जेपी मॉर्गन 2024, तो जेपी का जो जे है वो इन्वर्टेड फोर जैसा दिखता है ना, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक इट विथ 2024। सिमिलरली ब्लूमबर्ग इंडेक्स का जो वी हैव टू लिंक इट विथ 2025। तो वही जो 5 है इट लुक्स लाइक एफ, एफ तो नहीं, अच्छा ब्लू, हाँ 5 लुक्स लाइक बी, अगर बी का ऐसे रहेगा, ठीक है। सो दैट वे यू कैन ऑल्सो लिंक 2025 टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स, ठीक है। Now, bonds issued by government or RBI for special purposes. So, bonds by modern day governments to curb gold consumption, and we'll then read about RBI's capital indexed bonds or CIB versus IIBs. So, real interest rate formula क्या होता है? The real interest rate is considered to be the normal interest rate minus the inflation. ठीक है, so inflation is removed and then the real interest rate is calculated. Negative real interest क्या होता है? It happens when ये inflation is more than the nominal interest rate, ठीक है। So that will be reducing the purchasing power of that person who has lent the money, ठीक है। So thus leading to, thus people rather invest in gold or real estate instead of productive assets, ठीक है। देखो क्या आप, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैंने आई हैव गिवन अ लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ सपोज 5%, 5% इंटरेस्ट रेट में मैंने एक लोन दिया है किसी को भी, ठीक है। हाउ एवर वॉट हैपन्स इज दैट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सपोज 100 रुपीज़ दिया है किसी को एट 5% इंटरेस्ट रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, से 1 ईयर, ठीक है। So after 1 year, this person B will return 105 rupees to me, rupees 105. However, economy में क्या हुआ है, there is an inflation going on. Inflation rate कितना है per year? It is nearly say 6%, ठीक है, 6-7% मान लो। तो क्या हुआ, जो मेरा 100 रुपये मैंने दिया था at the beginning of the year, दैट हैज़ बिकम इक्वल टू ₹106 राइट नाउ। मतलब कि अभी जितना 106 रुपीज़ की जितनी वैल्यू होती है, जितना परचेजिंग पावर होता है 106 रुपीज़ का, दैट इज़ सिमिलर टू वॉट 100 रुपीज़ हैड बैक इन द डे, मतलब 1 ईयर बैक, ठीक है। तो मतलब कि 100 इसका पैसे का द वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड एंड, है ना, समझ गए। सो इफेक्टिवली क्या हुआ, इवन दो आई हैव गॉटन मोर मनी बैक, मेरे को 105 रुपीज़ वापस मिले हैं, बट स्टिल आई हैव लॉस्ट वैल्यू, 1 रुपी वैल्यू मेरा आई हैव लॉस्ट,
ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट, and this reduces the purchasing power as has been written here. Solution क्या है इसका? RBI has launched inflation indexed bonds. ठीक है, so these are basically aimed at protecting investors from the impact of a lot of inflation. ठीक है, तो inflation indexed bonds have been launched. Now we'll look at RBI's capital index bonds CIB, and we'll be comparing those with the inflation index bonds. So इसमें देखो, वैसे हाँ, जो जो वो फ्रेज है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, वो और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो फ्रेज है, दीज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि IIBs को CIB बोल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। सो अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है, सो वी लुक एट दिस टेबल नाउ। सो अर्लियर क्या बोलते थे, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स वर, एंड जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं दे आर सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, सो जो 1997 में जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स थे, वी विल बी कंपेयरिंग दोज with the capital index bonds of 2004 onwards, and along with that we'll also be comparing those with IINSSC 2013 onwards. IINSSC का फुल फॉर्म है इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग्स सिक्योरिटीज। ठीक है, सो दीज विल बी क्यूमुलेटिव। सो अगेन वील बी कंपेयरिंग दीज थ्री। यहाँ पे जो CIB 2004 और जो IIB 2013, दोनों को we'll be comparing. So first of all, depending upon the bond year, whether the principal was protected against inflation or not. So in case of CIB 1997, yes, the principal was protected against inflation. ठीक है, इन the CIB 2004 and the inflation index bond 2013, again principal was protected, or even in the inflation index national savings securities, inflation is, sorry, the principal is protected. Now when it comes to the interest, जो पुराने वाले कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स थे 1997 के, द इंटरेस्ट वाज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, पर जो अभी वाला जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है 2004 का एंड द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, देयर इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एज वेल। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग्स सिक्योरिटीज क्यूमुलेटिव, अगेन द इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, now we'll be looking at the benchmarks which they follow in order to ensure that जो interest rate या जो भी पैसे हैं it is above the inflation. So we'll look at the benchmarks which they follow to determine the inflation. So the initial one, CIB 1997 में wholesale price index was used. ठीक है, similarly in the capital index bonds of 2004 and the inflation index bonds of 2013, again wholesale price index was used. However, in अभी वाला जो है inflation indexed national saving certificates 2013, consumer price index was followed. ठीक है, so this is a fairly important table. Do revise it a couple of times. And इसमें सबसे important क्या है? It is this portion, that interest protection नहीं था CIB 1997 में, but अभी है, and the benchmark is also quite important here. ठीक है, next we will look at RBI sovereign gold bond. So sovereign gold bonds are basically again a security, a type of security which is issued by RBI on behalf of the government. ठीक है, so the denomination is measured in grams of gold, but no physical gold as such is given. Instead, the investor gets the equivalent amount of money at maturity. और इंटरेस्ट रेट कितना है? 2.5 to 2.7% annually, and it varies depending upon the issue year. And the tenure is around 8 years with early exit options after 5 years as well. तो इसमें आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू वाया डायग्राम कि क्या हो रहा है। इसमें होगा, सपोज आई एम अ नॉर्मल पर्सन
and I want to buy this sovereign gold bond. So I will be going to RBI. मतलब RBI is the one who's handling this. However, it is the government who issues it ideally. ठीक है? तो I'll be reaching out to them and I will offer some money. ठीक है? तो money के in return for this money, I will be getting a bond. बॉन्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मिलेगा, एंड उसका जो डिनोमिनेशन रहेगा दैट विल बी इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. सो आई वोंट बी गेटिंग फिजिकल गोल्ड, बट ऐसा रहेगा कि आई हैव गॉटन, सपोज आई टुक 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, है ना, 10 ग्राम गोल्ड लिया, तो उसका आई विल गेट अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. ठीक है. एंड हाउ मच डिड आई पे, जितना भी 20-30 हज़ार जितने का भी, आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्राइस इज राइट नाउ. ठीक है. सो अब अराउंड आई डू नॉट नो, जितना भी है उतना पैसे दिया एंड आई विल गेट अ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. नाउ उसका जितना भी मैच्योरिटी रहेगा, मैच्योरिटी कैन गो अप टिल 8 years, है ना. सो आफ्टर 8 years व्हाट विल आई गेट बैक? 8 years के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रिसीविंग एन इंटरेस्ट ऑन दिस, सो इंटरेस्ट ऑफ नियरली 2.5% ऑन दिस मनी इटसेल्फ. ठीक है. तो इस पे मेरे को दो 2.5% मिलेगा. ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड किस चीज़ में है, इट इज़ डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड. ठीक है. तो मेरे को इसके इक्विवेलेंट आई विल बी गेटिंग द मनी. ठीक है. तो क्या हुआ है, 8 साल में द प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज रिजन. इट यूजुअली राइजेस, है ना, प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम. ठीक है. तो प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीज हो के जितना भी हो गया, उसके बाद में अभी जो मेरे को कितना मिल रहा है, 10 ग्राम का जो अभी वाला इक्विवेलेंट है, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी आई विल बी गेटिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो बी गेटिंग द इंटरेस्ट. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय कंपनीज. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ क्या क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. सो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेसिकली इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, दे आर सिमिलर. The only difference is that bond is a British term, whereas a debenture is an American term. ठीक है. So there is no as such major internal difference between the two. So how do you remember कि कौन सा ब्रिटिश है? बी से ब्रिटिश. ठीक है. बॉन्ड्स एंड ब्रिटिश, एंड डिवेंचर अमेरिकन टर्म है. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट जंक बॉन्ड्स. देखो जंक बॉन्ड्स क्या होता है. Junk bonds basically refers to a bond which is very low rated. ठीक है. So a junk bond is a very low rated bond. Other types are redeemable, irredeemable, secured versus unsecured bonds, non convertible bonds and hybrid instruments. ठीक है. तो जंक बॉन्ड में क्या रहेगा, इट विल बी अ वेरी लो रेटेड बॉन्ड, है ना, and it will be issued by high risk companies like ILNFS etc. to attract investors, and they offer very high interest rates. इसका मतलब आपको समझ आ गया कि क्या हुआ है. बेसिकली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने अगर किसी कंपनी को, इट हैज़ गिवन वेरी लो क्रेडिट रेटिंग, दैट मीन्स दैट द कंपनी इज नॉट एबल टू, मतलब उसका पुराना फाइनेंशियल रिकॉर्ड या क्रेडिट हिस्ट्री इज़ नॉट गुड. ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट हैज़ वेरी लो रीपेमेंट कैपेसिटी. तो उस केस में द रिस्क विल बी वेरी हाई, द रिस्क फैक्टर, दैट इज द क्रेडिट रिस्क विल बी वेरी हाई फॉर दैट कंपनी. मतलब इफ समवन गिव्स अ लोन टू दैट कंपनी, देन देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट द लोन मे नॉट बी रीपेड बैक टू हिम. ठीक है. सो दैट इज व्हेन उसको हम लोग बोलते हैं लो रेटेड बॉन्ड या जंक बॉन्ड. ठीक है. तो ये हाई रिस्क कंपनीज इशू करते हैं, and they have, since they are very high risk companies and they have poor credit ratings, that is why they are forced to provide a very high interest rate. ठीक है. otherwise no one will take money, they no one will be willing to lend to them.
इससे अच्छा तो वो लोग सोवरेन बॉन्ड्स लेके अपना बढ़िया एटलीस्ट देयर इज अ मतलब इट विल बी श्योर दे विल बी श्योर दैट दे विल बी गेटिंग देयर मनी बैक, है ना? सो पीपल वुड प्रेफर टू गेट सोवरेन bonds instead of these junk bonds. ठीक है, so that is why the junk bonds, these companies will be forced to provide very high interest rates. ठीक है, नेक्स्ट है redeemable bonds. सो इसमें वही जो नॉर्मल हमको पता ही है ना कि इंटरेस्ट इज पेड पीरियोडिकली एंड द प्रिंसिपल इज रिटर्न एट द मैच्योरिटी. ठीक है, इररिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होता है? इसमें ओनली द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड एंड नो प्रिंसिपल इज रीपेड. So it is used by public sector banks for basic requirements but often have an exit option after 5 to 10 years. So if you remember we had read about 81 bonds थोड़ी देर पहले, थोड़ी नहीं पिछले वीडियो में as far as I remember. ठीक है, सो इररिडीमेबल बॉन्ड्स और जो 81 बॉन्ड्स हैं उनका थोड़ा सा सिमिलर, दे आर क्वाइट सिमिलर, नॉट द सेम बट क्वाइट सिमिलर. ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि यू ओनली हैव टू पे द इंटरेस्ट एंड नो प्रिंसिपल इज required to be paid, and on top of that the company who has taken the loan they can buy back that bond after some time. ठीक है, नेक्स्ट है secured versus unsecured bonds. So secured bonds have pledged assets and unsecured bonds do not have any pledged assets. ठीक है, that is the only difference. ये तो वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड वी हैव डन दिस वेरी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी revision. Next here, non-convertible bonds. So non-convertible bonds, as the name suggests, they cannot be converted. So converted into what? Converted into shares. So they cannot be converted into shares. ठीक है, बस इतना है उसमें. Then we have hybrid instruments. So hybrid instruments क्या होता है? They are initially issued as bonds, but then can be converted into shares. ठीक है, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में क्या रहेगा? इनिशियली बॉन्ड रहते हैं वो लोग बट देन दे आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, सो दे आर एसेंशियली दे आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ दीज आर ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स OFCD. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट हाइब्रिड फाइनेंसिंग और मेज़नाइन फाइनेंसिंग. So it has elements of both debt and equity. Lender gets a right to convert the debt to an equity. ठीक है, बोथ डेट और इक्विटी दोनों का रहता है इसमें. सिमिलर लाइक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे इट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, और यू कैन देयर इज अ राइट टू कन्वर्ट द डेट और द बॉन्ड टू एन इक्विटी. ठीक है, एंड इट इज़ डन वाया इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये OFCD जिसमें ऊपर जिसकी बात करी थी. ठीक है, इट इज़ डन वाया दिस, है ना? एंड वेंचर कैपिटल्स जनरली यूजुअली यूज इट इन द स्टार्टअप कंपनीज. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? दे इनिशियली गिव देम अ लोन एंड देन आफ्टरवर्ड्स कन्वर्ट दैट इनटू एन इक्विटी. सो फॉर एग्जांपल इफ इनिशियली दे विल गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी. ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनी छोटी है, उसको पहले लोन दे दिया, फिर बाद में इट बिकम्स बिग. ठीक है, बड़ी हो गई कंपनी, देन दे want better profits. ठीक है, so that is why they convert this into shares and then they'll be able to earn better dividends, and IPO में they can also offload also. ठीक है, then now we look at this table. ठीक है, तो इसमें वही थोड़ा सा जेनरिक सा इंटरेस्ट रेट बताया है कि यूजुअली इंटरेस्ट रेट कितना होता है नॉर्मल बॉन्ड्स का? इट इज़ अराउंड 12%. बट व्हेन इट कम्स टू OFCD, दैट इज़ द optionally fully convertible debentures, then the interest rate is around 8%. It is lower. And shares का तो it is quite uncertain. ठीक है, it depends upon how the growth rate is happening, changing. ठीक है, then rights or claims during liquidation. So the bonds
or people holding the bonds will be having the first right when it comes to the liquidation of a company. एंड जो ओ एफ सी डी जो लोग होल्ड करते हैं दे विल बी हैविंग मिडिल राइट्स, मतलब कि इनके बाद में फर्स्ट के बाद में इनका आएगा। और शेयर पीपल द पीपल हैविंग ओनिंग शेयर्स विल बी हैविंग द लास्ट राइट्स और लास्ट और रेसिडुअल क्लेम्स ओवर द, मतलब ओवर व्हेन लिक्विडेशन इज हैपनिंग। लिक्विडेशन कब होता है? जब कंपनी बंद हो जाए, है ना। तो उसमें फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पैसा मिलेगा वापस? इनको, जो लोग के पास बॉन्ड्स हैं उनको सबसे पहले पैसे वापस मिलेगा, देन सेकंड मिलेगा ओएफसीडी वालों को, एंड जिनके शेयर्स हैं देन दे विल बी गिवन द लास्ट। अगर कुछ बचा पैसा देन ओनली दे विल बी गिवन द मनी, शेयर्स, द पर्सन हु होल्ड शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। सो हाइब्रिड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो इन्वेस्टर होता है दे हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर बॉन्ड इनटू शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो द एफ सी सी बीज आर इशूड इन अ फॉरेन करेंसी एंड कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसमें और नॉर्मल जो करेंसी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे हमारे में, व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी इन दिस केस, ठीक है। तो उनको क्या इन इस केस में क्या रहेगा? दे विल बी the bond will be converted into shares, ठीक है। but the basis of this will be that a predetermined exchange rate will be used, ठीक है। तो current जो भी exchange rate चल रहा है that will not be used in this case, and that is the only major difference between these two, ठीक है। so sorry, जो इसमें वही दिया है कि the FCCBs are issued in a foreign currency and thus carry a fixed interest rate, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, टाटा मोटर्स होगा, टाटा मोटर्स इश्यूड एफसीसीबी वर्थ $1 billion in 2010, ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स गेव डॉलर करेंसीज, ठीक है। तो इसमें वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज अराउंड ₹1000, ठीक है। और टेन्योर कितना रहेगा? अराउंड 5 years, ठीक है। सो द इंटरेस्ट विल बी 5% ऑन द फेस वैल्यू इन डॉलर्स, सो दैट विल बी अराउंड $50। और कन्वर्जन का ऑप्शन क्या है? इफ द इन्वेस्टर वांट्स he can convert one bond into two shares of $500 value each, ठीक है। सो हम ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो दिस, द मीनिंग ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड या कोको, which is also known as the enhanced capital note, ठीक है। so its features are that it is a hybrid or a mix of 81 bonds and OFCD। so इसमें क्या होगा? इसमें लिखा रहता है कि 81 बॉन्ड्स हमने वी हैड रेड इन अ प्रीवियस वीडियो, उसमें क्या होता है दैट ओनली इंटरेस्ट इज पेड रेगुलरली एंड द borrower does not have to pay the principal, ठीक है। एंड दिस कंटिन्यूज फॉर अ, मतलब इट इज एंडलेस, देर इज नो फिक्स्ड टाइम पीरियड। however these bonds can be brought back by the lender, आई एम सॉरी द borrower, ठीक है। तो इसमें वही केस रहता है। और ओ एफ सी डी स्टैंड फॉर, जो अभी हमने बस पढ़ा, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। तो जो कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड रहेगा या इनहांस कैपिटल नोट, दैट विल बी अ मिक्स ऑफ दीज टू। तो इसमें क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल वील पे यू A% इंटरेस्ट रेट, बट इफ समथिंग हैपन्स वील कन्वर्ट इट इनटू शेयर्स, ठीक है। एंड इफ समथिंग एल्स हैपन्स देन वील राइट ऑफ दैट शेयर प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड विल नॉट इवन कन्वर्ट इट इनटू अ शेयर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है? दिस, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंटिंजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब कोई कंटिंजेंसी अगर राइज हो रही है, कंटिंजेंसी मतलब certain situation is rising, then this bond can be converted into something else, so it can be converted into two things,
First of all, it can be converted into shares, और otherwise it can also be written off. ठीक है? और वैसे नॉर्मली कितना है, 8% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे वो लोग. ठीक है? Now we'll look at the types of bonds based upon the issuer. Now we'll be looking at certain kind of मतलब थोड़े से examples of global bonds, ठीक है, which are famous. So for example, one is BRICS bond. ठीक है, BRICS bond क्या है? It was issued by New Development Bank to fund infrastructure projects, and इसका denomination will be in US dollars since it is the most commonly used currency. That is why its denomination is also in US dollars. ठीक है, then we also have the World Bank bond. इसको bond ही बोलते हैं, bond I. It is considered to be the world's first blockchain based debt instrument. ठीक है, it is blockchain based. जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आपने पढ़ा था ना, ब्लॉकचेन इज बेसिकली काइंड ऑफ अ रजिस्ट्री. ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर. ठीक है, this has been issued in Australia using Ethereum blockchain, and the tenure is up to 2 years with 2% interest rate. Or denomination is in Australian dollars, and thus it is also called as the kangaroo bond. Kangaroo is considered to be Australia's national animal, so that is why इसको नाम दिया है kangaroo bond. Then we have the Evergrande crisis. This refer ये एक normal ऐसे term है. This refers to Chinese real estate crisis एक हुआ था. उसमें बेसिकली जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू रीपे बॉन्ड्स. ठीक है, तो इसको एवरग्रांडे क्राइसिस बोलते हैं. दिस हैड लेड टू पैनिक अमंग वेरियस फॉरेन इन्वेस्टर्स, दस अफेक्टिंग चाइनीज एंड ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है, next we'll be looking at certain long term debt instruments like masala bond, maharaja bond and panda bond. So जो मसाला बॉन्ड्स हैं, मसाला बॉन्ड्स आर बेसिकली rupee dominated bonds, that is they are denominated in rupee. ठीक है, तो उनका डिनोमिनेशन इज इन रुपीज. सो फॉर एग्जांपल बॉन्ड का जो भी फेस वैल्यू रहेगा, दैट विल बी इन रुपीज. ठीक है, एंड दिस इज इशूड आउटसाइड इंडिया. This is very important that it is issued outside India to raise funds for Indian companies. ठीक है, and it was initiated by IFC. It is World Bank's sister agency, IFC. ठीक है, and it is aimed at supporting India's public and private sector. So IFC stands for International Finance Corporation. ठीक है, यहाँ कॉरपोरेशन, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन. IFC, which stands for International Finance Corporation. ठीक है, now we look at the key developments. So in 2015, RBI had allowed Indian entities to issue masala bonds. Then in 2017, NHAI issued masala bonds on the London Stock Exchange for highway projects. Then 2019, Kerala became the first Indian state to issue masala bonds through KIIFB. फिर denomination is in Indian rupees as we know. Total size कितना है? Around 21.5 billion rupees के worth के bonds have been issued, and a tenure is around 5 years, and they have very high interest rates because of the BB rating of India. ठीक है, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, मूडीज, फिच एट्सेट्रा, सो दे हैव गिवन इंडिया दिस रेटिंग. That is why we are forced to provide a very high interest on these bonds. ठीक है, so from this paragraph we need to remember these things. First of all, एक तो 2015 में RBI ने अलाउ करा था मसाला bonds. Then we need to know that NHAI had issued मसाला. We do not need to remember the year as such. बस ये पता होना चाहिए कि NHAI is one body which has issued masala bonds. Then you need to remember that Kerala is the first Indian state to issue masala bonds through KIIFB.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर चाहिए तो ट्राई टू रिमेंबर दिस बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। टेन्योर भी पता होना चाहिए कि 5 साल का है, एंड वो बीवी रेटिंग ये तो पता ही है। नाउ वी नीड टू लिंक मसाला बॉन्ड्स विद 2015। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे कर लो 2015 मसाला। सो अगर आपको पता होगा देर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ मसाला इन द किचन, मतलब 5 मेन काइंड्स होते हैं। उसके बाद के जो बाकी मसाला होते हैं ना, दे आर जस्ट नॉट एज इम्पोर्टेंट। 5 मेन काइंड्स ऑफ मसालाज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं कि 5 से 15 हो जाएगा, एंड मसाला बॉन्ड्स वर इशूड फर्स्ट बैक देन, एंड 5 years से यू कैन ऑल्सो लर्न द टेन्योर। ठीक है, next we'll look at sovereign green bonds, which are long-term debt instruments again. So sovereign green bonds देख लेते हैं, government bonds and utilization of funds. So these sovereign green bonds are generally issued by RBI's EcoWare platform. ठीक है, वही जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन था ना, वही EcoWare platform itself. It can be bought on the EcoWare platform, and these funds go to the Consolidated Fund of India. ठीक है, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है पर्टिकुलरली, दे विल प्राइमरली बी यूज फॉर ग्रीन पर्पसेस। कोई भी ग्रीन एक्टिविटी होगी गवर्नमेंट की, इट विल बी यूज फॉर दैट। ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ दीज आर, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे कोई भी रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, देन एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। देन यू हैव इलेक्ट्रिक सॉरी वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो। ठीक है, and the fund will not be used for nuclear power or large hydropower even. ठीक है, and it won't be used for landfill projects, weapons, tobacco, gambling, or palm oil industry. So this is extremely important. You need to know कि कौन से में it is not used. First of all, nuclear power में नहीं यूज होता because of course it is not a green energy, not green. ठीक है, then है large hydro power। इसमें इवन दो, देखो हाइड्रो पावर को आप ब्लू एनर्जी से लिंक कर लो कि वाटर इज बीइंग यूज्ड, देयरफॉर इट डज नॉट कम अंडर द ग्रीन एनर्जी का, या ग्रीन का जो ब्रैकेट है उसमें इट डज नॉट कम। देन लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, सी लैंडफिल प्रोजेक्ट्स में भी व्हाट इज़ बीइंग डन बेसिकली, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा कचरा होगा, इट मे बी बायोडिग्रेडेबल और इट मे बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, उसको दे विल सिंपली कवर इट अप विद अर्थ। ठीक है, सो इफ टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रीन मेथड ऑफ disposing of waste। ठीक है, so again that is also not included in sovereign green bonds। then weapons तो of course they won't be included here, tobacco भी नहीं included है, gambling भी नहीं है, and even palm oil for that matter is not included in the green industry। ठीक है, what all is included, वही renewable energy except hydropower। ठीक है, this is extremely important that hydropower has not been included। ठीक है, then energy efficiency, LED bulbs इन सब के लिए, clean transportation is included, then water and waste management except landfills। ठीक है, just the management, then pollution control, green buildings, equity investment in metro projects, all of these are included। Now we look at the regulation। So finance ministry is the one who reviews the projects, ठीक है, for ensuring that they follow green guidelines, and green finance working committee led by the chief economic advisor is the one who oversees fund allocation। ठीक है, again this is also very important।
Okay, which is the body? It is Green Finance Working Committee, which is led by the Chief Economic Advisor, which oversees fund allocation. ठीक है. um, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी के कौन है? अभी के हैं, इट इज़ डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, है ना. आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. इट इज़ डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन. ठीक है. एंड इनका काम क्या होता है? दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बट primarily they are they control they are ex officio cadre controlling authority of the Indian Economic Service, and the economic survey is also presented by these people, him only, chief economic advisor. ठीक है. So green finance working committee has been put under the chief economic advisor. ठीक है. तो इनको आप लर्न कैसे करेंगे? लिंक इट विद द नेम ऑफ द CEA. सो देखो आनंद, अगर इफ़ यू डू गार्डनिंग और ग्रीन चीज़ों से इफ़ यू आर कनेक्टेड, देन यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर आनंद. ठीक है. तो वैसे करके लर्न कर लो. हैप्पीनेस बहुत होगी ऐसे ग्रीन चीज़ें करने से, एंड दैट इज़ वाई ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी वी अनंत नागेश्वरन. ठीक है. Now we'll be looking at green bonds, greenium. So greenium basically refers to investors willing to accept a lower interest rate for sustainable impact. ठीक है. तो even if a very low interest rate is being given on a bond, even then they will be willing to accept it just in order to ensure that sustainability is maintained, और वो थोड़ा सा CSR एक्टिविटी के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली ग्रीनियम इज द प्रीमियम which an investor is willing to pay for a green bond, indicating trust in the project's positive impact. ठीक है. Now we look at India's sovereign green bonds. So despite their good ratings, they have not attracted very high greenium from private investors. ठीक है. Now one reason for this could be trust issues and lack of transparency in India's green projects. ठीक है. So again, this portion is not important. You just need to know what greenium means. ठीक है. Now we'll be looking at certain miscellaneous bonds which are left. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर ग्रीन बॉन्ड्स, है ना. अभी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कर लिए थे. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर द वंस विच आर इशूड बाय द गवर्नर, आई एम सॉरी, बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. एंड नॉर्मल जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, दीज कैन बी इशूड बाय एनी प्राइवेट एंटिटी. ठीक है. एंड द money which has been accrued via these bonds will be used primarily for green purposes only. ठीक है. सो देख लेते हैं. फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए यूज़ करेंगे. सो इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है. एंड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय येस बैंक. ठीक है. देन ब्रिक्स के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, दे आर इशूड बाय NDB इन युआन. देन IREDAs, मसाला ग्रीन बॉन्ड इज ऑल्सो देयर. ठीक है. एंड इट इज़ लिस्टेड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. देन PFC का भी एक यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडियाज़ फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड. ठीक है. देन वी हैव सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, वो तो अभी देख लिया था. दे हैव बीन इशूड इन 2022. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर. ठीक है. इसको पहले यहाँ ये लिख लेती हूँ फुल फॉर्म. IREDA का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है. सो आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. IREDA स्टैंड्स फॉर इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी.
ठीक है, and it is a public limited company established as a non-banking financial institution. ठीक है, now we'll be looking at PFC euro denominated green bonds. PFC का full form क्या है वो देख लेते हैं एक बार. So PFC stands for Power Finance Corporation. Power Finance Corporation. ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इट इज़ बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, इंडिया का ही है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एंड इट इज़ एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस. ठीक है, इसमें इन्होंने दे हैड कम अप विद यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स एंड दीज वर इंडियाज फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड्स. एंड IREDA, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, इट हैड इशूड इंडियाज फर्स्ट मसाला ग्रीन बॉन्ड्स. ठीक है, सो अगेन यू शुड रिमेंबर दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस. एक तो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो पावर को आप यूरोप से लिंक कर लो कि यूरोपियन कंट्रीज या यूरोप नहीं, यूरोपियन यूनियन एज अ होल इज़ अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, EU इज़ अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे आप लिंक कर लो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को. ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टू IREDA. IREDA को हम वी हैव टू लिंक इट विद मसाला ग्रीन बॉन्ड. ठीक है, तो रेड, हाँ IREDA, तो ये देखो IREDA. ठीक है, रेड में क्या होगा, रेड स्टैंड्स फॉर रेड कलर, है ना. रेड कलर होता है, रेड कलर से क्या लिंक कर सकते हैं हम लोग, मसाला. रेड कलर का वो होता है ना, चिली पाउडर. ठीक है, तो उससे लिंक कर सकते हैं इसको. सो दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर दिस. सो IREDA मसाला ग्रीन बॉन्ड्स. ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी का है, दैट इज वाई ग्रीन बॉन्ड्स विल ऑल्सो बी देयर. सो दिस इज मसाला ग्रीन बॉन्ड्स. ओके, नाउ वील बी लुकिंग एट ब्लू बॉन्ड्स. सो ब्लू बॉन्ड्स रेफर टू, दे आर बेसिकली अ सब टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, है ना, सब टाइप है उनके, एंड दे आर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट वाटर एंड मरीन प्रोजेक्ट्स. मरीन प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लू बॉन्ड वाज इशूड बाय सेशल्स एंड इट वाज प्राइमरीली फॉर मरीन कंजर्वेशन एंड फिशरीज. ठीक है, तो ये है आपको याद रखना रहेगा. ब्लू बॉन्ड इज अ सब टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड एंड द एम इज क्लाइमेट रेजिलियंट वाटर एंड मरीन प्रोजेक्ट्स. कुछ भी मरीन इज ब्लू, है ना, तो उससे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. एंड डू रिमेंबर दिस कि सीशेल्स का, देखो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर सिंस सेशेल्स इज अ आइलैंड नेशन, है ना, तो उनका इट विल बी इजी टू रिमेंबर कि उनका कुछ पानी से रिलेटेड होगा, तो ब्लू बॉन्ड है for marine conservation and fisheries. Then we have ESG bonds. So ESG stands for environmental, social and governance practices. ठीक है, so it involves investing in companies having strong environmental, social and governance practices. ठीक है, इसमें बस इतना ही है. सो बहुत जेनरिक सा चीज़ है कि कोई ESG bonds are issued by companies having strong environmental, social and governance. बस ये, दिस इज ओपन टू अ लॉट ऑफ, मतलब दिस इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, तो कोई भी बोल सकता है आगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, एंड दे कैन इशू दिस अपेरेंटली. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स. सो दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज. सो हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बट इफ़ अ नेचुरल डिजास्टर अकर्स द प्रिंसिपल विल नॉट बी रिटर्न्ड. ठीक है, तो इसमें वही होगा, कैटास्ट्रॉफी के जो अगर हो गया कहीं पे, ओनली देन इज इट यूजफुल. ठीक है, कैटास्ट्रॉफी इज एन एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है, सो इन दोज केसेस दिस प्रिंसिपल नीड्स नॉट टू बी रिटर्न, है ना, और बस आपको इंटरेस्ट जो तब तक दे चुके हैं ओनली दैट विल स्टैंड. ठीक है, एंड दिस इज इशूड
primarily by government or insurance companies, and the interest rates are also quite high. Then we have console bonds. So console bonds kya hai? These are again perpetual bonds having no maturity dates, ठीक है, और indefinitely इसका इंटरेस्ट रेट पे करते रहना होता है. दिस इज सिमिलर टू, वी हैड रेड अबाउट 81 बॉन्ड्स, है ना, तो उससे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, because even they were operated on the same principle that there was no maturity date as such, है ना, और वहाँ पे बस इंटरेस्ट देते रहना था, ठीक है. और उसमें आफ्टर सम टाइम द कंपनी कैन रीबाय दैट बॉन्ड बैक, है ना. बस इतना ही होता है इसमें. नाउ दीज आर हिस्टोरिकली इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके, and they were suggested for India's post COVID-19 economic recovery, ठीक है. Now we look at elephant bonds. So these were suggested by Dr. Surjit Singh Bhalla committee in 2019, ठीक है, and 25 years का tenure रहता है इनमें, and the black money holders must invest a portion of it into infrastructure projects as well. 25 years tenure रहता है elephant bonds का, ठीक है. Do remember this. ठीक है. So again, Surjit Singh Bhalla Committee, Elephant Bonds, and 25 years का tenure, black money, ठीक है. इसमें देखो ये बेसिकली पेनल्टी बॉन्ड टाइप है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म बॉन्ड. तो इसमें जिनके पास भी ब्लैक मनी है एंड दे हैव बीन फाउंड टू बी हैविंग ब्लैक मनी, they are made to invest a major portion of their wealth into such projects, so that उनका money will get tied up and it will act as a penalty for them for having kept black money, ठीक है. सो इनको याद कैसे करेंगे? सुरजीत सिंह भल्ला. तो ऐसे लर्न कर लो कि भल्ला, चाट का नाम होता है ना भल्ला पापड़ी, है ना, तो ज़्यादा अगर वो खाएंगे तो यू विल बिकम लाइक एन एलिफेंट, ठीक है. ऐसे बस लर्न करने के लिए मैंने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो वैसे करके सुरजीत सिंह भल्ला कमेटी, एलिफेंट बॉन्ड्स, ठीक है. एंड कितना ईयर्स का टेन्योर है? 25 ईयर्स का टेन्योर है, एंड इट हैज़ जस्ट बीन proposed. अभी तक शायद आई डाउट इफ इट इज़ in it has been implemented or not. Next we'll be looking at social impact bonds. So इसमें क्या रहेगा? In 2019 SIDBI's 300 crore women's livelihood bond were issued, है ना. और देखो इसमें क्या रहेगा, सोशल इम्पैक्ट के लिए रहेगा ये बॉन्ड, है ना. तो इसमें क्या है, सिडबी का जैसे कि इन्होंने इशू करा, दिस वाज प्राइमरली फॉर इम्प्रूविंग वुमेन्स लाइवलीहुड, एंड मतलब वही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था. सो देयर विल बी सम सोशल इशू कनेक्टेड विद दिस, ठीक है. तो जो भी बॉन्ड इशू करके पैसा मिलेगा बोरोअर को, दैट मनी विल बी यूज फॉर सम सोशल इशू. सो इन दिस केस वुमेन लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए. देन फॉर एग्जांपल ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, दिस इज प्राइमरली यूज फॉर स्किलिंग 50,000 इंडियन यूथ्स, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करके रहेगा, इट विल बी फॉर सम सोशल इशू. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट नाबार्ड सोशल बॉन्ड्स. सो नाबार्ड का जो सोशल बॉन्ड है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडियाज़ फर्स्ट AAA रेटेड रुपी सोशल बॉन्ड, ठीक है. 5 year tenure है और 7% will be the interest rate, and the money which has been accrued from these bonds, they will be used for the Jal Jeevan mission, which is aimed at providing drinking water, safe drinking water to every household in the villages, ठीक है. तो again this is extremely important that it is India's first AAA rated rupee social bond, ठीक है. AAA rated मतलब it is very secure, very risk free करके बॉन्ड है ये. एंड टेन्योर और इंटरेस्ट रेट भी पता होना चाहिए हमको. 5 years का टेन्योर है ना. तो इसको वैसे लिंक कर लो. देखो रूरल एरियाज़ के लिए, रूरल एरियाज़ में पंचायत में कितने लोग होते हैं? पंचायत मतलब 5 people, ठीक है. तो 5 year टेन्योर उससे लिंक हो जाएगा. एंड 5 + 2 दैट इज 7% विल बी द इंटरेस्ट रेट, ठीक है.
Next, we'll look at sukuk bonds, that is Islamic bonds. So these are basically Sharia compliant bonds. Sharia compliant bonds are usually issued in Islamic nations. ठीक है, this is not very important from the exam point of view. नेक्स्ट है बॉन्ड्स सच एज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं. So zero coupon, zero principal bonds, they are issued generally by non-profit organizations, ठीक है, and NGOs. इनके लिए उनको रीपेमेंट नहीं करना होता, देयर समथिंग लाइक चैरिटी ओनली. ठीक है, चैरिटी टाइप का ही है. नाइदर प्रिंसिपल नॉट द इंटरेस्ट हैज़ टू बी रीपेड एंड दे आर नॉट ट्रेडेबल इवन. तो ऐसे नहीं है कि इनको रीसेल कर दिया सेकेंडरी मार्केट में जाके. ठीक है, and it is transferable, therefore it can be passed on to the legal heirs, and they are similar to donations. As I said, charity ही होती है ये basically. there is no, मतलब bond ऐसे ही नाम रख दिया है, it is primarily charity only, है ना. However, it will be having greater transparency and accountability, and that is why it has been named so. Now minimum issued size कितना है इसका, 50 lakh rupees, and minimum investment will be around 10,000 rupees. नेक्स्ट है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्नति हैड इशूड ZC ZP बॉन्ड्स ऑन NSE फॉर यूथ स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, तो दीज आर NGOs करते हैं इसको इशू, एंड दे आर सिमिलर टू चैरिटी और डोनेशन. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एज यू माइट बी नोइंग, दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना, और बहुत वो भी है, काफ़ी फेमस टॉपिक भी है. Electoral bonds were first announced in the budget 2017. ठीक है, and they were then notified by the finance ministry. They are issued only by SBI, ये भी important है. ठीक है, and किसके मल्टीपल्स में, इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़. ठीक है, बाइंग पीरियड कितना है, फर्स्ट 10 days ऑफ ईच क्वार्टर. तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, उन सबकी 10 फर्स्ट 10 days में यू हैव टू बाय इट. ठीक है, देन एक्स्ट्रा 30 days इन लोकसभा इलेक्शन ईयर्स में भी देना है. जैसे कि फर्स्ट 10 days ऑफ ईच क्वार्टर दे कैन बी बॉट. उसके अलावा इन केस दैट ईयर हैज़ अ लोकसभा इलेक्शन लाइंड अप, then there will be an extra 30 days wherein these bonds can be bought. ठीक है, कौन बाय कर सकता है, इंडियन सिटीजन और इंडियन रजिस्टर्ड कंपनीज. ठीक है, तो कंपनी शुड बी एटलीस्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया. देन दे कैन बी परचेज्ड वाया बैंक अकाउंट्स, so not cash, and only after KYC verification. ठीक है, then we have who can receive it. It can be received by the political parties which are registered under RPA 1951, that is Representation of Peoples Act 1951. Now, moreover, it must have secured, the political party which secures it must have secured at least 1% of the votes in the last Lok Sabha or Vidhan Sabha elections. ठीक है, नहीं तो ये ब्लैक मनी को वो मनी लॉन्ड्रिंग का मेथड बना देंगे लोग, नहीं तो, है ना. सो दैट इज वाई दिस प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन गिवन, दिस गाइडलाइन हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड. ठीक है, तो मतलब at least 1% of votes that political party must have secured. Then validity कितना है, 15 दिन from the purchase, and must be deposited and donated within this time frame. ठीक है, within 15 days it should be donated and deposited. नेक्स्ट की फीचर्स क्या हैं इसके, वही पेपर फॉर्मेट में होता है, इट इज़ नॉट डीमैट, देयर इट इज़ अ बियरर इंस्ट्रूमेंट, सो देयर इज़ नो recipient name required, and it is a promissory note, and zero interest, non transferable है, and it cannot be pledged for loans. ठीक है, तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, डू रिमेंबर दिस, एंड इट इज़ सिमिलर टू अ promissory note और बियरर इंस्ट्रूमेंट भी है वो. बेनिफिट्स क्या है, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग. वही ये, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड मेन्स में भी दिस माइट हेल्प यू. इट रिड्यूसेस कैश और मनी इन्फ्लुएंस, वो ब्लैक मनी वगैरह का इन्फ्लुएंस इन इलेक्शंस विल बी रिड्यूस्ड.
देन इट इंश्योर्स डोनर कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो पार्शियलिटी नहीं होगा कि जैसे क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इज फाइटिंग फॉर इलेक्शंस, है ना। सो क्या होगा, इसके लिए एक कंपनी आएगी XYZ एंटरप्राइजेस, ये बोलेगा इनको कि आई विल गिव यू फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग में आपका इलेक्टोरल बॉन्ड बाय करके आई विल गिव यू मनी। गिव यू मनी मतलब वैसे हो जाएगा। और बाद में वंस यू गेट इलेक्टेड देन फेवर मी इन गेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे कोल्यूशन ना हो जाए, तो इसलिए डोनर कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, सो इवन दो ऐसे लिखा है कि डोनर कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड, पर ऐसे असली में होता नहीं है। वो पता चल ही जाता है उनको कि किसने डोनेट करा है ना, वो सब इट इज़ ऑल कोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये था 2017 में स्टार्ट हुआ था। हाउएवर 7 years लेटर इन 2024 सुप्रीम कोर्ट बैंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, why did the supreme court ban it? Because there was a lot of corruption which was happening due to this, और quid pro quo भी हो रहा था। as I just told you कि quid pro quo का एग्जांपल दिया था मैंने अभी, कि बिजनेस फंडिंग इन एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, then it also violates representation of people's act, companies act, income tax act। ठीक है, वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन भी वायलेट कर रहा है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विच हैज़ बीन गिवन। देन वोटर्स राइट टू नो, ये सब all of this was being violated। ठीक है, and that is why Supreme Court has banned electoral bonds। So Supreme Court has given the following directives. SBI must disclose all donors and recipient political parties from 2019-2024 election 24 to the Election Commission। ठीक है, and the Election Commission must publish this data by March 2024। नेक्स्ट करंट स्टेटस क्या है, SBI हैज़ रिक्वेस्टेड अ टाइम वो ये पुरानी न्यूज़ है। सो दे हैड आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन, और वही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। इसमें बस आप ये याद रखना कि द सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड दिस इन 2024 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। So the UPA or the Congress government had launched this. It allows a company to create an electoral trust. So such electoral trusts can receive donations from other persons or companies who donates it to various political parties। जैसे कि डोनर्स कौन कौन है, DLF, ये एग्जांपल्स दिए हैं कि ऐसे ट्रस्ट बना लेते हैं, है ना। such electoral these electoral trusts receive donations from various companies and persons, and then they donate it further to the political party in question। ठीक है, तो ऐसे रहेगा इसमें, आई जस्ट टेल यू हाउ। ये ट्रस्ट है, दिस विल बी, ये इसको बहुत सारे लोग डोनेट करेंगे, कंपनीज, पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा, सॉरी वही कंपनीज और लोग, है ना। दिस विल इन टर्न डोनेट दिस मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी इन क्वेश्चन। ठीक है, सो बस इतना ही काम है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। ठीक है, एग्जांपल्स ये दिए कि इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसमें डोनर्स कौन है, ये सब लोग, भारतीय एयरटेल, GMR, DLF, ये सब हैं। और इसके रेसिपिएंट पार्टीज कौन है, कांग्रेस, बीजेपी और रीजनल पार्टीज। ठीक है, सो नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस हाउ मच ऑफ द भारतीय एयरटेल्स डोनेशन मेंट टू बीजेपी। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन ट्रस्ट है, इससे इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में। देयरफॉर इट इज अ बिट मोर, क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एनोनिमिटी हियर एंड ज़्यादा वो नहीं है करप्शन का, देयर इज़ नो स्कोप हियर, वेरी लिटिल स्कोप रहता है इसमें। ठीक है, सो देयरफॉर इट प्रोवाइड्स एनोनिमिटी टू द डोनर्स and this scheme has not been banned by the courts। ठीक है, now we'll be looking at some miscellaneous types of bonds। So first of all we have market linked debentures or bonds। तो इनमें क्या होगा, दे आर, एज द नेम सजेस्ट्स, दे आर मार्केट लिंक्ड, मतलब कि the interest rate is not fixed in this case, it is linked to an underlying market index like
सेंसेक्स, गवर्नमेंट G-Sec का यील्ड, गोल्ड प्राइस इंडेक्स एटसेट्रा। ठीक है। नाउ बॉन्ड्स की भी देर आर मिसलेनियस टाइप्स लाइक स्ट्रिप बॉन्ड एटसेट्रा। सो व्हेन द बॉन्ड हैज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट, देखो इसमें क्या होगा। So we have learnt about market linked bonds wherein the bond is linked to an underlying market index. ठीक है। Now we were looking at stripped bonds है ना। इसमें क्या होगा, जो principal और interest repayment है ना, that will be put into separate compartments। ठीक है। तो ये principal का पैसा है और ये interest का पैसा है। ठीक है। And separately this will be done। ठीक है। And वो ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, बस इसमें इतना ही यू नीड टू रिमेंबर कि द बॉन्ड हैज बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट which is stripped into separate compartments. Next we have buffer bonds for bond repayments, buffer funds for bond repayments। तो इसमें क्या है, जैसे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है, इट हेल्प्स स्टेट गवर्नमेंट्स टू रीपे द डेट while the debenture redemption reserve fund is a buffer created by companies issuing bonds to repay investors later. So fund is legally required under the Companies Act। तो इसमें I'll just tell you क्या है ये चीज़। देखो ये स्टेट गवर्नमेंट है ना, इनके पास देयर इज़ अ ट्रेजरी वेर इन दे हैव मनी। So they have borrowed money from the say they have borrowed money from the RBI or so है ना। उन्होंने वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस से एंड अदर मीन्स ऑल्सो दे हैव borrowed money। ठीक है। सो व्हाट विल दे डू इज दैट, एक ये बना लेंगे, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बना लेंगे। इसमें ऐसे जनरली दे विल बी हैविंग मनी इन दिस। ठीक है। सो ये वाला जो मनी है, दिस कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी केसेस कि अगर if they are unable to pay that money back, जो लोन का पैसा है, if they are unable to repay that debt from their own treasury, then they'll resort to this consolidated sinking fund, which they'll use to pay the money back in time। ठीक है। सिमिलरली अगर ये था स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, नाउ इफ यू लुक एट प्राइवेट कंपनीज, दे ऑल्सो हैव अ सिमिलर रिजर्व एंड दैट रिजर्व इज नोन एज द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व रिडेम्पशन। ठीक है। उसका भी दिस फंक्शन इज द सेम। ठीक है। सो द फंड इज लीगली एक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड याद होना चाहिए एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यू शुड ऑल्सो रिमेंबर। नेक्स्ट वो their names are also quite self-explanatory as you might be seeing है ना। Next है, in 2019 the government relaxed debenture redemption reserve rules to ease business operations। ठीक है। तो रिलैक्स कर दिए थे इसके रूल्स एंड प्रीवियसली कंपनीज लाइक NBFCs एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ 25% buffer, but after the reform some companies only need a 10% buffer। ठीक है। और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है उनको तो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कीपिंग दिस बफर इवन। ठीक है। तो दिस ऑल्सो यू शुड बी नोइंग कि 2019 में द रूल्स वर ईजनड और पहले 25% रखना पड़ता था, अभी दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कीपिंग दिस। नाम क्या है इनका, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। Thank you. Kindly like, share, and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.